So now let us see how to trace the curve y square is equals to x square plus 1 divided by x square minus 1. So we know that to trace this curve, we need 6 points, right? The first one is that symmetry. Okay, so now let us see symmetry. Even power in both x and y, therefore curve is symmetric about both axes. If curve is symmetric about both axes, then we need to draw the curve only in one quadrant. Okay, draw the curve in one quadrant. Next step, look whether your curve passes through origin or not. Now let us see. Yes, if you see here, if you just cross multiply here, okay, see the second step, origin, you just write like this: y square is equals to x square minus 1 is equals to x square plus 1. Now see here, there is a constant term. Look, 1 is a constant term, right? Therefore this curve does not passes through origin. Curve does not passes through origin. You can see x is equals to 0 and y is equals to 0 does not satisfy this relation. Okay, if you put x is equals to 0, as I also told you that if it's see the constant term, right, and it means that this curve doesn't passes through origin. Then the third one is intersection with axis. Okay, intersection. To find intersection with x-axis, we put y is equals to 0. To find intersection with y-axis, we put x is equals to 0. Okay, so first you put x is equals to 0. Put x is equals to 0 in given equation. Look what will happen. If you see, that is going to be minus 0 plus 1, 0. 0 minus 1, minus 1. That is minus 1. It means that no real y. Correct. No real y. That is curve. It's not going to intersect with y-axis because you're putting x is equals to 0 means you're looking to find intersection with what? Intersection with y-axis. Since there is no real y, means curve does not intersect with y-axis. Okay. Now we put y is equals to 0. If you put y is equals to 0, what will happen? Okay, that is x square plus 1 is equals to 0. If you put y is equals to 0 here, then this is a division of two expression, and a by b is 0 only when the numerator is 0, right? Here x square plus 1, this will give you x square plus 1 is equals to 0. Is still no real value. It means that curve neither touches x-axis nor touches y-axis, right? You can see here when you put x is equals to 0, no real values of y comes out. When you put y is equals to 0, no real value of x comes out, right? It means that your curve not intersecting with x-axis or y-axis. Okay. And the fourth step is what? The fourth step is to check asymptotes. Okay.
Now let us see the fourth step. Keep writing everything. Okay, the fourth step is your asymptotes. So to find asymptotes, either you equate the higher coefficient of higher degree of x equals to 0 to find asymptote parallel to x-axis, or you equate higher coefficient of higher degree of y to 0 to find asymptote parallel to y-axis. Okay. For example, if you see, let me rewrite the equation, that is x square minus 1 times y square is equals to x square plus 1, right? So now you equate coefficient of higher degree of higher coefficient of y square is equals to x square minus 1. Equate them 0, you will get x is equals to plus minus 1. It means that asymptote parallel to, right, what you have done here, you equate the coefficient of higher degree of y equals to 0, you get x square minus 0, that will give you x is equals to plus minus 1, right? It means that x is equals to plus minus 1 is asymptote parallel to x-axis. Okay, parallel to x-axis, parallel to y-axis, parallel to y-axis. Now you have to find asymptote asymptote parallel to x-axis also, that also going to be y is equals to, if you see here, let us see asymptote. Okay, if you just open it, that is your x square y square, then this is minus y square, this is x square plus 1, you just bring over here, this is x square y square minus 1 is equals to y square plus 1. Again the coefficient of higher degree of x is simply here y square minus 1, because सबसे बड़ी पावर इसमें x की कितनी है 2 है, so कोएफिशिएंट कितना है y square minus 1 है, so you equate them, therefore y square minus 1 is equals to 0, this will give you y is equals to plus minus 1. Now there are 4 asymptotes parallel to axis, 4 asymptotes which are parallel to axis, and these are, look here, these are what, these are x is equals to plus minus 1 and y is equals to plus minus 1. Okay, this is the fourth part, that is asymptote. Now let us look the fifth part, that is called as region. Let's draw the fifth one, region. So y is equals to how much, under root of x square plus 1 upon x square minus 1. If you draw it, you will get x square plus 1 divided by, sorry, x square plus, yes, under root of x square minus divided by x square minus 1. Now look what will happen. All of you know how to deal with it, because y is defined, I'm writing here, y is defined only when this x square plus 1 divided by x square minus 1 is greater than or equal to 0. Okay, y is defined only when x square plus 1 divided by x square minus 1 is greater than or equal to 0. Now how to do that? I mean, how we just how we can find those regions for which it is positive? It's very easy. Look, I'm going to do so. Just I will take the help of sign scheme. This is all you have learned in your previous class. Look, the sign scheme, right? X square plus 1, there is no any point for which it is not defined. Look here, this x square minus 1 is not defined for plus minus 1. I'm going to mark here minus 1 and receive plus 1. I'm taking the help of sign scheme, right? Now take any number which is just greater than 1. Okay, take any number which is just greater than 1, that is for example 2. Just check the sign of this expression at x is equals to 2, that is going to be positive. So this is your positive. Since there is no even power, right, in these factors, right, this is going to be changed alternatively. Okay, so if you see it, right, if you see it, that is x is one positive when x is less than equals to minus 1 or x is greater than equals to 1. Therefore y is not defined when x lies between minus 1 to 1. It means that y is only defined
when x is less than or equals to -1 and or x is greater than 1. Means in other language I will say y is imaginary when x lies between -1 to 1. Means there is no curve between -1 to 1. So we are not going to draw the curve between -1 to 1. The next one is that the sixth part is that is some special points. In fact, we don't need here to find derivative. Without finding some derivative, we can say what are, I mean, how you can trace a curve very uniquely without knowing some special points. Now take some points. For example, this is x, this is y. If you take x is equals to 1.5, it is going to be 1.61. If you take x is equals to 2, this is 1.29. And if you take x is equals to 3, it is going to be 1.11, and so on. Okay, just I have chosen 3 points. Okay, let us draw the graph of this curve. Right, collect all those information inside your mind. क्या क्या बातें बताएंगे? पहली बात तो ग्राफ आपका जो है -1 से 1 के बीच में नहीं होगा. इसके एसिम्पटोट कौन कौन है? x is equals to plus -1, x is equals to y is equals to plus -1. मैंने आपको कल बताया था जब भी आपको ड्रॉ ट्रेस करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपना एसिम्पटोट बना लेंगे. एसिम्पटोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ आवर एसिम्पटोट फर्स्ट. सबसे पहले एसिम्पटोट डालें और फिर देख लें क्या उसने कहां पे इंटरसेक्शन किया था कर्व को एक्सिस पे. ओके, look, so for example, this is x is equals to 1 and this is x is equals to -1. This is your y is equals to 1. This is y is equals to -1. This is your x-axis. This is your y-axis. Okay, now just I'm going to mark here. This is your -1. This is x is equals to +1. आपको पता है कि इस रीजन में ये जो आपने स्क्वायर दिख रहा है बीच का, ये स्क्वायर, इसमें कर्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अभी आपने बताया था कि जब y तभी डिफाइन होगा या तो y लेस देन -1 हो या y ग्रेटर देन -1. आपको सर वहां बाय मिस्टेक इक्वल्स टू लिख दिया था, वो नहीं हो सकता इक्वल्स टू, वहां पे ओपन इंटरवल होगा. वहां पे जो पीछे लिखा था हमने x लेस देन इक्वल्स टू -1, बल्कि ये नहीं होगा, वो होगा x स्ट्रिक्टली लेस देन -1. उसको सही कर लें. एंड दूसरा मैंने मिस्टेक किया था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा था, बल्कि ये नहीं होगा, दैट इज x स्टिल ग्रेटर देन 1. ओके, बिकॉज़ एग्जैक्टली -1 और +1 पे जो है फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है. ठीक है, तो उसको हम छोड़ देंगे. जिस पे डिफाइन नहीं होता उसको वहां पे हम ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं. एनीवे आप सही कर लें, वहां पे स्टिक लेस देन 1 होगा और स्टिक ग्रेटर देन 1 होगा. इस रीजन में हमारा ग्राफ डिफाइन नहीं है. अब ध्यान से देखिए कर्व ट्रेस कैसे किया जाए. एवरीथिंग शुड बी इनसाइड योर माइंड. आपका ग्राफ जो है, जो इस फंक्शन ग्राफ है, वो सिमेट्रिक है सारे के सारे क्वाड्रेंट में. हमने कहा अगर आप इसमें ट्रेस कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन आपको जो पूरा ग्राफ ट्रेस हो जाएगा. आई रिपीट अगेन, योर कर्व इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट. क्यों? एक्स एक्सिस के बाउंड में सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस सिमेट्रिक है. तो अगर इसे हम यहाँ ट्रेस करते हैं अपने कर्व को, तो बिल्कुल वैसे यहाँ आएगा, वैसे यहाँ आएगा, वैसे यहाँ आएगा. अब पता क्या है कि x is equals to 1 और y is equals to 1. These are their asymptotes. अगर asymptotes है तो ग्राफ, अच्छा पहली बात तो कि इसके लाइन की यहाँ आएगा नहीं, ना तो इसके बीच में आएगा, ना यहाँ होगा ग्राफ, ना इसके बीच में होगा. राइट, इसके ऊपर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा. अब इसको मुझे इन दोनों को एसिम्पटोट बनाना है. एसिम्पटोट बनाना है तो ऐसे तो खींचेंगे नहीं, ऐसे तो एसिम्पटोट होगा ही नहीं. एसिम्पटोट कैसा होता है कि वो टेंजेंट हो रहा होता है, जैसे जैसे कर्व के मूव कर रहे होते हैं तो वो लाइन क्या होती है, टेंजेंट बन रही होती है. राइट, इसका मतलब ये, इस अगर इसको टेंजेंट बना तो ये कर्व ऐसे कहीं रहा होगा.
करेक्ट, ऐसे बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये तो मतलब होता है y इज इक्वल टू 1 अगर इसकी टेंजेंट है, सॉरी एसिम्प्टोट है, इसका मतलब x इंफिनिटी की ओर बढ़ रहे होंगे तो y कहाँ बढ़ रहा होगा, 1 की इंक्रीज कर रहा होगा। देखिए जैसे जैसे आप इंफिनिटी की ओर बढ़ेंगे, देखिए इंफिनिटी कहाँ है, ये इंफिनिटी राइट साइड में है, जैसे इंफिनिटी बढ़े कर्व आपको 1 की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए हमें जैसे बढ़ना है, ये देखिए ऐसा कर्व होना चाहिए, और कोई तो ऑप्शन इसके पास है नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे इसे ऐसे इंटरव्यू तो कर्व कहीं ऐसे रहा होगा इस साइड, राइट। अब आपने एक दो पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, देखिए 1.5 इसके आगे लीजिए, 2 पे ले लीजिए, 3 पे ले लीजिए, आप यहाँ वैल्यू मार्क कर लीजिए, तो आप देखेंगे ये आप 9 पॉइंट्स पे ज्वाइन करेंगे, ये कर्व बिल्कुल ऐसे ही आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इस x इज इक्वल टू 1 का एसिम्प्टोट बनाया, तो हमने कहा एसिम्प्टोट तब होगा जब ये बिल्कुल लगे कि कर्व को इंफिनिटी पर टच करने जा रहा है, राइट। तो इसको ऊपर बढ़ाया, फिर देखा हमने y इज इक्वल टू 1 में एसिम्प्टोट था, तो हमने कर्व की इस तरह बनाई, लगे कि हाँ ये इंफिनिटी पर टच करने जा रहा है। अब बचा बीच का पोर्शन, बीच का पोर्शन कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ पॉइंट लिखे थे मैंने, उन सबको आप ज्वाइन कर लेंगे तब कर्व ऐसे मिलेगा इस कॉर्नर में। अब जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, द सेम फिगर यू जस्ट ट्रेस हियर इन दिस क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ बना लीजिए। क्यों? बिकॉज कर्व इज सिमेट्रिक। ये क्यों किया ऐसा यहाँ पे, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, बिल्कुल इधर सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस में है, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज योर एक्चुअल फिगर ऑफ दिस गिवन कर्व। तो चूंकि आपका कर्व सिमेट्रिक था बोथ एक्सिस में, देयरफॉर आई हैव जस्ट ड्रॉन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया और उसी के अकॉर्डिंग सिमेट्री ले लिया। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर एग्जाम में ग्राफ पे ही करना पड़ेगा ना? नहीं, हाथ से पेंसिल से आप देखा नहीं था कैसे ट्रेस किया हमने, हाथ से तो ट्रेस किया है, आपके पास स्केल होगा, इस सबको यूज करके ट्रेस करना होगा। ओके, अब आप आते हैं रिमेनिंग ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व पे, जो हमने आपको बाद में कल भेजा था शीट। देयर इज अ क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। a प्लस एक्स is equals to a minus x times x square. You have to trace this curve. The first one is symmetry. Y square times a plus x is equals to a minus x times x square. You have to trace this curve. The first step is to check symmetry. करेक्ट, मैं सवाल करता हूँ, चलिए भाई मोहम्मद हमजा 20 CV 318, लेट मी नो इसमें x में इवन पावर है कि y में इवन पावर है? मोहम्मद हमजा 20 CV 318, सर y में इवन पावर है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो y में इवन पावर है, x में इवन पावर नहीं है। क्यों? जैसे आप यहाँ पे देखिए x की डिग्री कितनी यहाँ पे ऑड है, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ऑड आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे y x में ऑड है लेकिन y में इवन है, देयर इज इवन पावर इन y, और सिमेट्री एक ही चेक करनी होती है बस। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जब y में इवन पावर होता है तो x में सिमेट्रिक होता है। Now let us see origin. Just check whether your curve passes through origin or not. अब देखेंगे इस कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, there is no any constant term, right? There is no any constant term, right? Here look, ये multiplication में है ना, ये multiplication में है, right? तो कोई भी constant term नहीं है, it means that our curve passes through origin. Curve passes through origin. Now if curve passes through origin, then what is your next step? Your next step is to find
tangent at origin means you have to see the behavior of origin. So now look how to find equation of tangent at origin by equating the lowest degree terms. This is how we find now. So now equation of tangent at origin can be find out by equating the lowest degree terms to zero. अब यहाँ पे आप सेपरेट कर लेंगे इसको, तो देखेंगे यहाँ पे लोअर डिग्री टर्म कौन कौन से होंगे. देखिए वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर एक्स इसकी डिग्री 3 हो जाएगी. यहाँ से देखें ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट में एक्स क्यूब हो जाएगा, तो कितना आएगा ए टाइम्स मैं इसमें लिख दूंगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, छोड़ देंगे उसको. यहाँ से क्या आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स. इट मींस दैट यू आर गेटिंग टू टेंजेंट. अगर दो रियल टेंजेंट मिल रही हो तो उस डबल पॉइंट को क्या कहते हैं, राइट? व्हाट कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, राइट? सो नोड इज एक्सपेक्टेड, नोड इज एक्सपेक्टेड. क्यों वहां पे नोड हो सकता है? क्योंकि दो रियल टेंजेंट आ रही है. अगर सिर्फ एक टेंजेंट आ रही होती तो हम कहते हैं भाई एक टेंजेंट है तो हो सकता है कस्प हो. Now the third is what is third? Third is to check intersection with axis. To find intersection with x-axis, we put y is equals to 0. To find intersection with y-axis, we put x is equals to 0. Now, if you put x is equals to 0 in the given equation, you will get y is equals to 0. And when you put y is equals to 0, you will get x is equals to 0 and x is equals to a. So the point of intersection are 0, 0 and a comma 0. Now next, asymptote. The fourth part is asymptote. How we find asymptote? Asymptote कैसे निकालेंगे? By equating the higher degree of quotient of higher degree of x and quotient higher degree of y. Okay, चलिए बताइए क्या होगा asymptote मैथ के अंदर, होगा कि नहीं होगा? चेक कीजिए. x equal to minus a. Okay, so I'm finding asymptote parallel to y-axis as x plus a is equals to 0 will give you x is equals to minus a. There is no asymptote parallel to x-axis. Why? देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर और माइनस x क्यूब. The quotient of x cube is -1 which is constant. जब वो constant होता है तो उस केस में कोई भी asymptote नहीं होती, right? So x is equals to minus a. आप लिख सकते हैं no asymptote parallel to x-axis. No asymptote parallel to x-axis. Now the fifth part is to check region. ये सब याद रहे, इंटरसेक्शन इसने कहाँ किया है, सिमेट्री में कहाँ थी, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग को सॉल्व करते हैं. The fifth one is region.
if you see y is equals to x times a minus x divided by a plus x. This is your one, correct. Again there is square root, सेम तरीका लगाएंगे अपने साइन स्कीम से, इसको पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे डिफाइन है. y is defined only when a minus x upon a plus x is greater than equal to 0. So we will take help from sign scheme. Sign scheme says that draw number line. Okay. अब आप देखिए न्यूमरेटर 0 कहाँ होता है, x is equal to a पे 0 होगा. डिनोमिनेटर डिफाइन कहाँ नहीं है, x is equal to minus a पे डिफाइन नहीं है, तो उसको एक सर्कल बना लो यहाँ पे ऐसे into minus a. Now choose a number greater than a. यहाँ पे a आपने assume कर रखा है पॉजिटिव नंबर, राइट. a नंबर चेक करें, 2a ले लें, तो x की जगह पे 2a रखेंगे तो a minus 2a नेगेटिव, a plus 2a पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा. तो ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. Means it is defined, y is defined only for this region, positive, right? This one. So y is defined when x lies between minus a यहाँ पे आपको लिखना था माइनस ए, सॉरी यहाँ माइनस ए, यहाँ प्लस ए, करेक्ट. माइनस ए से ए इंक्लूड नहीं होगा. लुक, x is equals to minus a is not included. Okay, x is equals to a include होगा, minus a include नहीं होगा. It means that आपका जो कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस ए और ए के बीच में, ना तो माइनस ए से लेफ्ट जाने पे कर्व आपका है, ना ए के राइट जाने में कर्व आपका है. So your curve lies between minus a to plus a. ये आपका इसका रीजन होगा, ठीक है. तो आपका कर्व क्या है, नो कर्व व्हेन x is less than minus a or x is greater than a, means your curve lies between minus a to a. Now you can see some special points. एक्चुअली स्पेशल पॉइंट में हम डेरिवेटिव एकदम एंड में देखते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी पड़ जाती है इसकी एग्जैक्टली कर्व नहीं मिलता, तो फिर उस केस में हम डेरिवेटिव देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे वो जो है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, सो नेक्स्ट यू सी स्पेशल पॉइंट में यहाँ पे हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका. राइट, टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव अगर इसका डिवाइड बाय dx को आप इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 0.6188. राइट, नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. अब सारी बातें ज़हन के अंदर याद कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. पहली बात सिमेट्री. सिमेट्री, इसमें एक कर्व सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, क्योंकि y में इवन पावर थी, इसका मतलब कर्व सिमेट्रिक है किसके अबाउट, x एक्सिस अबाउट. x एक्सिस के ऊपर जो इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले, राइट. और हाँ, पहले देखो क्या हमने क्या बताया था आपको, जितनी भी अगर टेंजेंट एट ओरिजिन है तो वो ड्रॉ करते हैं और एसिम्पटोट ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले आप यही करेंगे, आप एसिम्पटोट और जिसके जो आपके ओरिजिन पे टेंजेंट है उसको ड्रॉ कर लें, और ध्यान से देखिएगा. I am going to draw a and minus a. मैंने ड्रॉ कर लिया. क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि कर्व इसी के बीच में लाई कर रहा है, और इनमें से एक ये वाला x is equals to minus इसके लिए एसिम्पटोट है. अब देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कर्व कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. बहुत ध्यान से रहे. फिर क्या करेंगे, y is equals to plus minus a, ओरिजिन टेंजेंट पे, ओरिजिन पे टेंजेंट है, तो y is equals to x and y is equals to minus x. ये ड्रॉ कर लिया.
ठीक है, ये रूल्स है। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले देखो एसिम्प्टोट बनाया जाता है और फिर देखते हैं कि क्या ओरिजिन पे टैंजेंट था, उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ध्यान देते हैं, फिर देखते हैं क्या ये कर्व, बहुत ध्यान से सुनिए कैसे कैसे कर रहे हैं, एकदम स्टेप बाई फॉलो कर रहे हैं। एसिम्प्टोट बना लिया, टैंजेंट ओरिजिन बना लिया और ये मार्क कर लिया कि इसने कर्व को टच कहाँ किया है, इस पे टच किया है और इस पर टच किया है। सिर्फ हम एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ जस्ट अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरी चीज और क्या है, डेरिवेटिव जो जीरो हो रहा है किससे हो रहा है, आई मीन जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट, भाई आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं, जहां अगर जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है इसका मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वहां पे या तो शेप ऐसे होगा या शेप उस पॉइंट पे ये होगा। मान लीजिए ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, राइट। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है उसका शक्ल या तो इसे कॉनकेव अपवर्ड होती है, कॉनकेव डाउनवर्ड होती है, शक्ल बिल्कुल ऐसी नहीं होती, राइट। तो हम उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, आपके ये पॉइंट 0.6 है, आधा मान लेते हैं 0.5 यहाँ है, 0.6 ये हो जाता है। इस पॉइंट पे टेंजेंट कहाँ ही मान लेते हैं, उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, देखिए कितनी हाइट तक जाएगा। जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लो, मालूम पड़ जाएगा हाइट, मान लेते हैं हाइट यहाँ तक जाएगा। अब ध्यान से मैं कर्व्स को बना रहा हूँ, यहाँ से उठाया, खुद भी दो चार केसेस लेना क्या क्या हो सकता है। क्या मैं कर्व ऐसे बनाऊं, ध्यान देखिएगा, इस तरह से कर्व बनाऊं, या फिर या आप ये पॉइंट 0.6 था, 0.6 ये ऑफ कोर्स ये, क्योंकि इसमें से क्या कहा है, जो आपका ओरिजिन है वो क्या है, नोड है। व्हाट इज ओरिजिन, इस नोड। अब ये क्या है, ये टेंजेंट है। अब देखो टेंजेंट मतलब क्या होता है, उठे कैसे, ये कर्व बिल्कुल ऐसे उठेगा ऊपर से, यूं जाके ऊपर जाएगा ऐसे। क्यों ऐसे ऊपर गया, पहली चीज तो ये ओरिजिन वो टेंजेंट था, दूसरी चीज इसमें क्या थी, यस मोहम्मद अली रजा। नाउ लुक, ये आपका एसिम्प्टोट है, इस बात को जरा ध्यान समझिए कैसे किया है। ये आपका एसिम्प्टोट था, x इक्वल टू माइनस एसिम्प्टोट, इसके एसिम्प्टोट होता है तो उसको पता है क्या। ओके, तो यहाँ बात हो रही थी कि आपकी एक कर्व जो है जो आपने ट्रेस किया है किस तरह, देखो ये आपने जो पॉइंट कर्व पे टच करना था, यहाँ टच करना था। 0.6 जो आप लिखा है 18 उस पे टेंजेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है, यहाँ पे भी फाइंड करें कहाँ तक, कितनी हाइट तक इसे ले जाएंगे। भाई 0 पॉइंट ठीक है, इस पॉइंट पे हो रहा है ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, बट कितनी हाइट तक जाना है उस पे आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां तक हाइट तक ले जाएंगे इसको। ठीक है, फिर इसमें एक चीज ये कह रहा है कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बना है ठीक एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, बिल्कुल ठीक इसका मैं सिमेट्री ले रहा हूँ। ये हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, इस हिसाब से बना लीजिए। करेक्ट, सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेस किया कर, आपको बिल्कुल वैसे आपने ट्रेस एक्स एक्सिस के नीचे ट्रेस कर दिया। ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ, किसी को कंफ्यूजन पूछ सकता है।
Yes, any question? Sir? हाँ सर हमने जो इसके टेंजेंट्स बनाए जो हमारे ओरिजिन पे क्रॉस टाइप का बनना है, तो सर हाँ। हमने राइट हैंड साइड तो जैसे कि उसके नीचे नीचे बनाया ग्राफ, नीचे समझे क्या? नीचे नीचे मतलब सर वो जो हमारे टेंजेंट्स है उन टेंजेंट्स के अंडर अंडर बनाया हमने राइट हैंड साइड ग्राफ। हाँ हाँ हाँ। तो सर हमने लेफ्ट हैंड साइड उसको ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक। अच्छा बस ये पूछे थे सर, मतलब ऊपर क्यों गया, तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है अच्छा सिर्फ अच्छा, इसलिए। वो इसलिए कि जी हाँ, इस सिमेट्री से नहीं लिया गया वो, उसको टेंजेंट ना, टेंजेंट कैसे कर दोगे इसके ऊपर? ये भी देखो ना, ये क्या है? एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट जिसको कैसे टच करेगा वो? भाई ये वाली लाइन एसिम्पटोट है। आपने बात समझा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं, जो आपने ये इस तरीके का पोर्शन आया है यहाँ, तो ये टेंजेंट थी, तो आपने इसको ऐसे बनाया। ये ऊपर भी टेंजेंट है, तो ये ऊपर ऐसे उठेगा यूं। ये आपका ऊपर तो ऐसे है और ये ऐसे जाएगा। क्यों ऐसे जाएगा? क्योंकि यहाँ इसे ऊपर आकर इसे एसिम्पटोट बनाना है। थोड़ी ना इसके अंदर से लेके जाओगे अंदर, तो ये कट नहीं टच नहीं कट इंटरसेक्ट नहीं कर देगा इसको। अगर आप इसके अंदर से लेकर जाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर देगा। माइनस ए हमारा एसिम्पटोट है और x इज इक्वल टू ए हमारा इंटरसेप्ट है। हाँ वो तो इंटरसेक्ट, वो ये हमने इसलिए लाइन बनाई है कि दिखाना कि इसके इधर ग्राफ नहीं है। ये जो आपने x इज इक्वल टू ए लाइन बनाई है वो इसलिए बनाई है, ये लाइन खींचिए, बाउंड्री दीवार खींचिए कि उधर ग्राफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ माइनस ए से ए के बीच में है। ये वाली लाइन हमने एसिम्पटोट के लिए खींची, ये जो लाइन देख रहे हो ये एसिम्पटोट के लिए खींची गई। ये लाइन दीवार खींची है कि उधर ग्राफ नहीं बनाना। और सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेस किया, बिल्कुल ठीक उसका जो है सिमेट्रिक एरिया नीचे की। ये आपका ग्राफ था जो आपका ड्रॉ किया गया। इसके बाद से एक ऐसा हमने ग्राफ लिया जिसमें एसिम्पटोट देखिए और डिफरेंट एसिम्पटोट आती है। जो अगला ग्राफ है, थोड़ा सा टाइम आपको, ये तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रैंडम आइडिया देते हैं। जैसे आपको ग्राफ है, ट्रेस द कर्व x³ + y³ इज इक्वल टू a स्क्वायर x। ट्रेस द कर्व x³ + y³ इज इक्वल टू a स्क्वायर x। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आ गया। सबसे पहले देखें आप, ना तो इसमें x में इवन है ना तो y में इवन है, इसका मतलब पहले दो सिमेट्री तो ऐसे ही निकल। बचता कौन है फिर कि आप x को रिप्लेस कर दे -a से और y को रिप्लेस कर दे, सॉरी x को -x से y को -x से। भाई हम चेक कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यस आपको मिलेगा, कर्व आपका चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपका कर्व सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सिमेट्रिक। चेंज द साइन ऑफ x एंड y, तो कितना हो जाएगा -(x³) -(y³), ये कितना हो जाएगा a² - x। दिस इज -(x³), दिस इज -(y³), दिस इज -(a² x। तो ओवरऑल हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x³ + y³ इज इक्वल टू a² x। मींस कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। हमारा कर्व सिमेट्रिक किसमें? अपोजिट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्या आता है, आपको देखना होता है क्या हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। लुक, टेंजेंट हमारा कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे उसके, देखना कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। यस हाँ, लोड इक्वेट करेंगे उसे ओरिजिन से, पहले चेक करेंगे ओरिजिन से पास कर रहा है। यस, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज नो एनी कांस्टेंट टर्म, राइट? कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, curve passes through origin, therefore we find tangent at origin, therefore tangent at origin can be found out by equating the lowest degree term. The lowest degree term is what? a² x, right? Tangent at origin can be found out, this implies that x is equal to 0, right? Only one tangent you have at origin. अब ध्यान रखिए क्या हो सकता है, अगर एक टेंजेंट आती है तो उसके इसमें कस्प हो सकता है, राइट? ये तरीका होता है पहचानने का, कस्प हो जाएगा। नाउ थर्ड इज इंटरसेक्शन।
अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सिमेट्रिक बात आपने की है, कर्व सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स का मतलब अगर कर्व मुझे पता नहीं है कि थर्ड क्वाड्रेंट में बनना है कि फर्स्ट में बनना है, अगर फर्स्ट में बनेगा तो बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको हम थर्ड में बना देंगे, अगर कर्व सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बिल्कुल वैसे ही उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बना देंगे, राइट। फर्स्ट सिमेट्रिक होता है, फर्स्ट और थर्ड अपोजिट क्वाड्रेंट होते हैं, 2 और 4 आपस में अपोजिट क्वाड्रेंट होते हैं, राइट। ओरिजिन हो गया, बात है इंटरसेक्शन पे। व्हेन यू पुट x is equals to 0 0 0, this will give you y is equals to 0. Now you put y is equals to 0, if you put y is equals to 0 कितना आ जाएगा, x cube is equals to a square x, which implies that x is equals to 0 and look here x cube is equals to a square x, इसको लेफ्ट में ले आया तो x square minus a square का मतलब x is equals to plus minus a भी निकल के आएगा, राइट। तो 0 0 एक इंटरसेक्शन हो गया, और क्या हो गया, 0 a हो गया, और क्या हो गया, 0 minus a 0 हो गया, राइट। 0 0 a 0 and minus a 0, these are the point of intersection with axis। इन सबको हम पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरसेक्शन देखने से, बहुत आसान हो जाता है कर्व को ट्रेस करना। पहले 3 आपके जो पार्ट थे वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्या होता है, एसिम्पटोट फाइंड करना। देखो इसमें ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है, ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है। देखने को हर डिग्री यहाँ पे एक्स की क्या है, एक्स क्यूब है, राइट। एक्स उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, जो कांस्टेंट है, कोई एसिम्पटोट पैरेलल एक्स एक्सिस नहीं मिलेगी। वाई क्यूब का है, वाई क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, जो कांस्टेंट है, कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं मिलेगी। इसके लिए भी क्या किया हमने, पुट कर दिया x is equals to 1 और y is equals to, पहले यहाँ पे एसिम्पटोट की बात आ रही थी, no asymptote parallel to axis। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसलिए हम इंक्लाइंड एसिम्पटोट की तरफ आएंगे, पुट कर देंगे x is equals to 1 and y is equals to m in higher degree terms to find phi 3 phi 2, right, phi 1 ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको phi 3 आएगा, it's simply m cube plus 1 phi 2 m is 0 and phi 1 m वहां तक आपकी नौबत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे ये m क्यूब प्लस 1 है तो phi 3 m को जब आप ग्रुप करेंगे यहाँ से ये m आ जाएगा, ठीक है। अब आप c कैलकुलेट करेंगे, c phi 3 डैश m जो कि 0 आ जाएगा, क्योंकि phi 3 m डेरिवेटिव जो है x is equals to सॉरी m is equals to -1 पे 0 नहीं होगा, सीधे c 0 हो गया। therefore asymptote क्या होगा इस केस में, asymptote जो होगी y is equals to ms plus c से y is equals to -x, this is your asymptote। इस कर्व के asymptote क्या है, y is equals to -x इसके asymptote है। now the fifth one is your region। okay, now see your region, y cube यहाँ पे कितना है, y cube is given as, उधर ले जाओ राइट साइड में, a स्क्वायर x माइनस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइम्स x, करेक्ट। दिस इज योर y। नाउ इफ x लाइज बिटवीन 0 to a, तो ध्यान से देखें, जब x 0 से a के बीच में होगा, then x lies between 0 to a, in this case y cube is positive, right। if y cube is positive means y is positive, so cube positive है इस रीजन में, this implies that y is positive। क्यों ऐसे कर रहे हैं, इससे पता चले ग्राफ x, देखो हमें पता नहीं है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है मुझे।
फर्स्ट में करना है कि थर्ड में कि सेकंड में करना है, किसी एक में करना है ग्राफ को टर्न, मुझे ग्राफ ट्रेस करना होगा सिर्फ एक क्वाड्रेंट में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, राइट। लेकिन पता नहीं हमें कौन सा लिव करना है। अगर फर्स्ट में ट्रेस करते हैं तो फिर हम थर्ड में करेंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में करते हैं तो उसका सिमेट्रिक लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ग्राफ हमारा जो गिवन हमारा कर्व है ये सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट, इसलिए पता कर रहे हैं कि कहां पे ये पॉजिटिव है कहां पे ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे। जब x 0 से a के बीच में आप देख सकते हैं y क्यू हमारा पॉजिटिव होगा, पता कर सकते हैं, ऐसे तो सब चीज आपने पढ़ी है 12th स्टैंडर्ड में। नाउ व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जब आपका x जो है a से बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, या ले रहे आप x पॉजिटिव ले लें, इफ x इज पॉजिटिव तो उस केस में आप देखेंगे y हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी x पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे a से बड़ा ले लें, सॉरी यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा लिखना है, बड़ा a से बड़ा लिखने हैं, ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख लें x ग्रेटर देन a, तो उस केस में y क्या हो जाएगा, y क्यूब नेगेटिव हो जाएगा। जब y क्यूब नेगेटिव है तो उस केस में y भी नेगेटिव है, इंप्लाइज दैट y इज नेगेटिव। जो शीट वहां पे यहाँ लिख दिया हुआ लिखा हुआ 0 a बना लें, y इज नेगेटिव, सही कर लें, शीट में वहां पे यहाँ लिखा हुआ 0 वो a होना चाहिए। ओके, तो इससे क्या अंदाजा हुआ कि जब x 0 से a के बीच में है तो y हमारा पॉजिटिव है, और जैसे x हमारा a से बड़ा हुआ y नेगेटिव है। अच्छा, 0 से a के बीच मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, राइट साइड की बात कर रहा है, ये राइट हाफ की बात कर रहा है ना, देखो, और a की पॉइंट, इसका मतलब ग्राफ कहाँ हुआ, जब 0 से a के बीच में है तो ग्राफ हमें देखना हो कहाँ होगा। और अब इसका मैं लिखता हूँ ग्राफ बना दो, एक और बना भी बचा हुआ है 6 पार्ट स्पेशल पॉइंट, फिर आपको बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। एसिम्प्टोट याद रहे, एसिम्प्टोट इसका कहाँ है, so now we find dy by dx, the 6 part is a special point. You calculate dy by dx, which is your a square minus 3x square divided by 3y square. डेरिवेटिव निकालना आप सबको आता है, you just equate them equals to 0 and you will have x is equals to plus minus a by root 3। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट जो हमारी होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब सबसे पहले इस पे आते हैं, हमने कहा ना आपको देखना है, देखें सबसे पहले गौर करें इसमें क्या क्या मिला आपको। सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि आपका एसिम्प्टोट कौन है, आपका एसिम्प्टोट कौन है, y is equals to minus x। सबसे पहले हमें ये भी देखना था कि किसी एक क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। अब कैसे डिसाइड करें कि फर्स्ट में करना है सेकंड में करना है, देखो ये बताएगा x जब पॉजिटिव बड़ा है 0 से और a से छोटा है तो x जैसे आप पॉजिटिव लेते हैं कौन सा पोर्शन होता है ग्राफ, ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज योर x ग्रेटर देन 0। भाई x एक्सिस आप देखें ध्यान से, ये आपका अगर x एक्सिस है ये y एक्सिस है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट x ग्रेटर देन 0 राइट, इक्वल्स टू भी लगा देंगे, चलो इसे छोड़ दे रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन कौन सा होगा, ये x ग्रेटर देन 0 का कह रहा है। इस पोर्शन में y क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ होता है, पॉजिटिव यहाँ होता है x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ग्राफ कहाँ हो गया, ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बात ध्यान समझे, ग्राफ कहाँ हो गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कब, जब x 0 से a के बीच में। अब आप क्या करें, इसको हम ट्रेस करते हैं। इसको ट्रेस करने से पहले मैंने बताया था आपको ड्रॉ करना होता है अपनी एसिम्प्टोट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इसके अंदर कोई हुआ है तो ठीक है। y is equals to minus x, आप एसिम्प्टोट बनाने पहले, दिस इज एसिम्प्टोट। अब बना ले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर टच कहां का किया है, x is equals to a पे टच किया है यहाँ, और x is equals to minus a पे टच किया है, this is the point of intersection right, minus a और a right, ये हमने बना दिया। अब इसने कहा है कि x मान लेते ये हमारा a है, ये हमारा माइनस a,
जब x इज इक्वल टू a है, यानी a कॉमन 0 था माइनस a 0 था। इस वाले पोर्शन में यानी 0 से a, ये देखें 0 से a में y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यानी कहाँ होगा ग्राफ ऊपर की ओर होगा। करेक्ट। और इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू जो आपका a बाई √3 है, वो उस पर क्या है आपका, वो मान लेते कहीं यहाँ पे बिल्कुल a बाई इतना होगा, a बाई √3 कहीं आपने से मान लिया, a बाई √3 कितना नहीं कितना होगा, a अपॉन 1.7 होगी, ये तो a 1.7 होगा। तो उससे आप देखेंगे तो कहीं वो 0 अभी 1/1.7 कितना होगा, 10/17 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दैट इज ग्रेटर देन 0.5, यानी कहीं यहाँ होगा, यहाँ कहीं इस पॉइंट होगा, इसको हम नाम देते हैं a बाई √3। ये हमारा इधर होगा, कहीं यहाँ होगा। इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, टेंजेंट जो है, इस पे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी हाइट तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ कितनी हाइट तक जाता है, यहाँ पे जहाँ पे ये y dy by dt 0 हो रहा होता है, वहां पे शक्ल कैसे उसकी होती है, या तो ऐसे होगी या तो ऐसे, डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे कौन सी है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो होगी नहीं सही वाली, करेक्ट, क्योंकि ये